हेलो एवरीवन। मैं वापस आ गई हूँ। आई एम बैक विथ येट अनदर स्टोरी, बट बिफोर दैट let me remind you that I am wearing my I am at home band. And what does it mean? It means that I am at home and I am not going to let anybody else from the outside disturb me. What does it mean? It means that yes, there will be some distractions, there will be some problem out there, but I am not going to let that disrupt my life. I'm not going to let that be a part of my daily schedule so much that I get deviated and not able to work, right? तो मैं ऐसा भी कुछ नहीं करूँगी कि कि मतलब चाहे जो कुछ भी होता रहे, बाहर में पॉल्यूशन हो, लोग हो, उनके ओपिनियन हो और मैं कुछ ना कर पाऊँ। ऐसा भी नहीं है कि इट इज़ नॉट लाइक दैट कि whatever they might keep on telling, I will not react, I will not say anything, I will just be a static human being, and I will not say do anything, not react. No, it means that I have got my I am at home band on my hand, and that no matter what, I am I am not going to let anything decide for me. That is number one. Number two is that I understand that there are some problems out there, some issues out there, but I'm not going to let that hamper my life. Number three is that I might, on a daily basis, come across lives, human beings, etc., that are probably better than me, poor than me, or just like me. And I'm not going to let that affect me. Number four is that I am going to invest time in myself, and I'm going to help those around me learn from how to invest time on themselves and earn money and be happy, right? Okay, so today I'm going to tell you an incident that has happened to me while having this little cup of yogurt. Why am I having yogurt? Because my mother thinks that it is that I am not having healthy food these days at all. Is it okay if I record and eat food? Yes, it is okay. Yogurt is amazing. And you people are my best friends. So that is something that I am looking forward to, having more and more fun conversation with you. What's going on with your life? What is your idea of a healthy food? My idea of healthy food is something that is equally healthy and tasty. But I will tell you something. Why am I so biased towards the south of India? It is because when you are out there in the south, I mean, South Indian food is something that wins over my heart all the time. Matlab dosa, idli, uttapam, all these things, appam are so healthy, right? It is made up of fermented rice. Even though there are some controversies over it, that after all it is made up of white rice, etc., etc. La, 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 la. But it's okay. I am fine with it, people. I am fine with it. Okay? I mean, you can see that you are traveling somewhere, right? आप कहीं पर जा रहे हो, you are traveling somewhere and you want to eat something like a simple stew and some simple white rice, but you just can't do it anymore. Why? Because people out there have forgotten the idea of simple meals. I mean, at my home, even मेरे घर में भी, like even at my home, I tell my mom that, Mom, I just want to eat what they call in Bengali sheddo bhat, okay? And that is just some rice.
with um it is just some rice with some lentil, some dal, और उसके साथ थोड़ा सा सब्जी प्रेशर कुकर में डाल के आप ऐसे ही खा लो। मेरी मम्मी मानने वाली नहीं है। शी विल कुक वेजिटेबल्स। वो सब्जी बनाएगी, वो कुछ ना कुछ बनाएगी, वो कुछ ना कुछ करती रहेगी, and she will put a lot of spices in the food. She will add more and more turmeric, and voila, there is this amazing looking food. But I tell my mom that no, मुझे बस खिचड़ी ही चाहिए। पहले तो मैं जब बैंगलोर से यहाँ पर आई थी, मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ, और दूसरी बात ये है कि like my parents seem to have a different opinion of their own, completely different opinion of their own, and they are not able to understand that my idea of simple food is sometimes just rice. Like I have this friend, मेरी एक दोस्त है, uh, उसके बारे में मैं आपको बहुत ज्यादा बोलूंगी भी। तो वो दोस्त मेरी मुझे बोलती है कि लाइक समटाइम्स बस राइस को उबाल के उसमें थोड़ा-सा नमक डाल के खाने से ज़्यादा मज़ेदार और कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक जैसे कभी-कभी गेस कर सकते हैं किसके बारे में बोल रही हूँ? एनीवेज़, कभी-कभी आप जब टायर्ड हो, आपका मन कर रहा है कि आप कुछ और करें, तो क्या कर सकते हैं? हम भूतों की कहानियाँ क्यों नहीं सुन सकते? मेरे पास बहुत सारे भूतों की कहानियाँ हैं, मैं एक-एक करके आपको यहाँ पे बताऊँगी, बलाऊँगी, हैं? बताऊँगी। एनीवेज़ मैं आपको बताऊँगी, एक-एक करके भूतों की कहानियाँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और शायद आपको भी अच्छी लगे। भूतों की कहानियाँ से मुझे याद है, मेरी एक चैनल है डिड यू हियर दैट, जहाँ पर मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ मेरे एक्सपीरियंस से या किसी सुने हुए कहानी याददाश्त से मैं कहानियाँ पोस्ट करती रहती हूँ। वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे जाके आप सुन सकते हैं। आपकी जैसे आपकी जैसे बहुत सारे दूसरे इंसान की सुने हुए कहानियाँ। सुने हुए या फिर एक्सपीरियंस किए हुए। तो मैं जो कहानियाँ बताती हूँ उसमें से सबसे ज़्यादा ये है कि कुछ-कुछ कहानियाँ मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं, कुछ-कुछ मुझे बोला गया है, कुछ-कुछ मेरे दोस्तों को बोला गया है, उनसे मैंने एक्सपीरियंस सुना है। और ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे दिमाग में हैं और मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करनी चाहिए, तो मैं शेयर करती रहती हूँ। तो अब ये बात है कि मुझे अ, अभी जो है, मैं आपसे इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हमारे दुनिया में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हम ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं हर एक चीज़ को, लेकिन हमारी दुनिया में कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मेरे साथ बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुकी है। जैसे कि मैं एक एक्सपीरियंस अभी बोल रही हूँ, मैं एक बार दार्जिलिंग में थी अपने मम्मी-पापा के साथ, और दार्जिलिंग में वैसे बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं। तो दार्जिलिंग में जाके मैंने अपने मतलब दार्जिलिंग में जाके मैंने अपने मम्मी-पापा से बोला कि पापा, मुझे ना वो पुरानी वाली रोड में जानी है और वहाँ पे ज़्यादा कोई जाते नहीं है। तो मेरी मम्मी-पापा थोड़ा गुस्सा हो गई। उन्होंने मुझे बोला कि तुम जानती हो ना कि वहाँ पर कितना खाली-खाली है। मैंने फिर भी अपने मम्मी-पापा को मनाया कि चलो ना वहाँ पर खाली है इसीलिए तो हम जाएँगे। मेरा दिमाग इतना अच्छा, आई एम सो इंटेलिजेंट दैट आई मस्ट डू इट, ओके? मैंने I convinced my parents, I convinced people, I'm so sorry, I have been practicing foreign languages day in and day out to prepare for job interviews and other examinations. इसलिए मेरा थोड़ा सा एक्सेंट ब्रिज के तरह हिल रहा है। एनीवेज, सो मेरा दिमाग इतना तेज चलता है कि मैंने बोला कि अच्छा खाली है इसीलिए तो जाएंगे। खाली अगर नहीं होता, अगर वहां पे लोग होता,
उस गली के बारे में थोड़ी-सी बदनामी नहीं होती? गली में सब कुछ सही है, तो मैं थोड़ी ना उसके उसके ऊपर थोड़ा-सा इतना ध्यान देती। तो मैं चली गई। जाने के बाद मैं मम्मी-पापा थोड़ी देर चल रहे हैं। अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर पुकारा। आई टर्न्ड अराउंड, मैंने टर्न अराउंड करके देखा, कोई नहीं था। ऑफ कोर्स कोई नहीं था, वरना मतलब ये थोड़ी ना भूतों की कहानियाँ हो सकती है। फिर मैंने सोचा कि चलो मम्मी-पापा को तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मम्मी-पापा को बोल दिया तो दे विल फाइंड आउट कि वो लोग मुझे आने नहीं देना चाहते थे और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। फिर कुछ देर बाद मेरी मम्मी बोली कि कोई मुझे पुकारा क्या? मैं वो इंसान हूँ जो कि अपने दिमाग के ऊपर भी भरोसा नहीं रखता। क्यों? क्योंकि कभी-कभार मैंने एक ऐसा वाला डिसीजन लिया है लाइफ में बहुत बार, जो कि कोई डिसीजन है ही नहीं। मतलब इतने स उन डिसीजंस की वजह से मेरे पैसे बर्बाद हुए, टाइम बर्बाद हुए, हेल्थ डेफिनिटली खराब हुआ और मेरी पढ़ाई तो अफेक्टेड हुई थी। तो फिर मैंने अपने मम्मी को थोड़ा-सा चेक करने के लिए मैंने बोला कि मम्मी, अच्छा ऐसा तो कोई तो कुछ नहीं, किसी के साथ तो ऐसा कभी नहीं होता। आपका थोड़ा-सा दिमाग खराब, टायर्ड हो आप ऐसे ही, आप वेकेशन में ज़्यादा नहीं आते, काम करती रहती हो, इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। बाय द वे, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे दूसरे चैनल भी देखें, उससे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, मदद हो जाएगी मेरी। और या आप आपको पता है सब्सक्राइबर बढ़ने से क्या होता है? मुझे अच्छी चीज़ें मिलेंगे, मैं अच्छे-अच्छे शॉपिंग कर पाऊँगी। एनीवेज़, तो अभी मैंने अपने मम्मी को बोला कि है ऐसा कुछ तो है ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। और मैं तो इतनी इंटेलिजेंट हूँ कि मैं थोड़ी ना भूत-प्रेत में विश्वास रखती हूँ। मुझे थोड़ी ना कभी भी ऐसे कुछ आवाज़ सुनाई देगी कि लाइक मेरे पास वाले कमरे से कोई जा रहा है, मुझे डर लगता है। नहीं, मुझे डर नहीं लगता है और ऐसा कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल हूँ। मेरे साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, है ना? बिकॉज़ एनीवेज़ तो अभी क्या है कि मैंने मम्मी को ये सब बोला और मैं उनको कन्विंस की कि लाइक आगे चलते हैं, और मुझे ऐसा लगा कि इट्स ओके, आगे चलने से कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। रास्ता तो कहीं न कहीं जाके पहाड़ी रास्ता है, कहीं न कहीं जाके तो टर्न होगा ही होगा। तो टर्न होने से हम वापस अपने होटल के रास्ते में आ जाएँगे। लेकिन मुझे इतना कुछ पता नहीं था। मैंने तो अज़्यूम किया, जैसे कि मैं पूरे दुनिया के बारे में अज़्यूम करती हूँ। जैसे कि मैं अज़्यूम करती हूँ कि आप ये वाला वीडियो देख के मेरे वीडियो में ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करेंगे, है ना? एनीवेज़, ज़रूर। तो अभी क्या है कि हम दोनों चल रहे हैं, अचानक से मेरे पापा, उनके पैर में मोच आ गई और वो जो जूते पहने हुए थे, वो बहुत ही, मतलब हम लोगों ने लाइक एकदम एकदम अच्छे से लाइक हे हाइकिंग में, ट्रेकिंग में जाए या ना जाए, चाहे हम पहाड़ों वाली शहर में जाकर हम बस रेस्टोरेंट में बैठ के मोमो और थुक्पा ही क्यों ना खाएँ। लेकिन हम जूते बहुत अच्छे पहन के गए थे कि जैसे कि मानो कि हम ट्रेकिंग करने जा रहे हो, पता नहीं कहाँ नेपाल पहुँच गए। तो हम वहाँ पर मुझे डाउट हो गया था। मतलब डाउट नहीं, यकीन हो गई थी कि लाइक कुछ तो गड़बड़ी है। फिर हमने वहाँ से एक ह मतलब लकीली वहाँ से एक ऑटो जा रही थी। ऑटो में चढ़ के हम होटल तक वापस आ गए। पैरों में हमने वो बैंडेज हम ट्रैवल में कैरी करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए, कौन-सा एलियन स्पेसशिप आके हम लोगों को कैप्चर कर ले, फिर कौन-सा वो वाला कुछ आके हमारे साथ कुछ कर दे। इसीलिए हम कहीं पे भी जाते हैं तो हम प्रिपेयर होके जाते हैं। टाडा! टाडा! एनीवेज़,
तो अभी क्या है कि मतलब हम चल रहे थे, तो दूसरी बात ये है कि हमको ना अचानक से ऐसे नज़र आया कि रास्ते के उस साइड से, मतलब हमारे ठीक सामने से, जैसे कि मानो कि कोई चल कर आ रहा है अचानक से, लाइक एक एक शैडो जैसा फिगर था। हमने हम जब ऑटो में चढ़ गए, ऑटो में चढ़ने के बाद हम जब मैं घूम के देखी, मतलब ऑटो के पीछे ना, ये वैसा वाला ऑटो था जिसके पीछे से आप अगर टर्न करें तो आप वो काँच का थोड़ा-सा छोटू-सा जनाला नहीं होता है, विंडो नहीं होता है। तो वहाँ से मैं टर्न करके देखी कि कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि रास्ते में कोई टर्निंग भी नहीं थी। तो या थोड़ा-सा योगर्ट खा लेती हूँ। ये वाला प्रॉब्लम तो है। तो अभी अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, तो ये मानकर शायद आप चले कि हमेशा कभी न कभी कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है। ये सारी चीज़ें शायद होती है। मुझे आई एम नॉट श्योर, मुझे इतना भी श्योरिटी से नहीं पता। शायद ये कभी-कभी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से भी होती है, लेकिन कभी-कभी ये ऐसे ही होती है। हुँ, टेस्टी योगर्ट, उसमें मेरी मम्मी ने थोड़ी-सी चीनियाँ डाल दी है। ओके, तो अभी एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ। मैं एक बार अपने घर में अकेली थी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है एक्चुअली। मैं अपने घर में अकेली थी और मैं अपने एक दोस्त के साथ, जो कि शहर से बाहर है, उसके साथ बहुत देर तक फ़ोन में बातें कर रही थी। बहुत देर तक, 1 डेढ़ घंटा हो गया। उसके बाद मैं एक बार अपने जो बालकनी है, अपने कमरे में, वो वाला डोर चेक करने गई कि बालकनी का डोर मैंने खुला तो नहीं छोड़ दिया। ऐसे ही मुझे ना इंस्टिंक्ट जैसा हुआ कि कहीं मैंने बालकनी का डोर तो खुला नहीं छोड़ दिया। कोई ऐसा कुछ रीज़न भी नहीं था, बस मेरा ना ध्यान बालकनी की तरफ गया। मैं बालकनी की तरफ गई और मैंने देखा कि नहीं, डोर खुला ही था। फिर बहुत सुंदर वेदर था, मैं बाहर गई और बाहर जाने के बाद मतलब मैं बालकनी में बहुत देर तक रुक गई थी, क्योंकि वो फ्रेश एयर जैसी आ रही थी, हवा बह रही थी। फ्रेश एयर, हवा किसको नहीं चाहिए? अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ, सो आई वाज़ जस्ट लुकिंग अराउंड, तब मुझे ना मेरे बाएँ तरफ, टुवर्ड्स माय लेफ्ट, आई सडनली सॉ दिस फिगर, somebody looking at me very curiously, like वो ना मुझे बहुत ही लाइक ऐसे क्यूरियोसिटी से मुझे देख रहा था। अचानक से मैंने मेरे घर के पास, जो घर के पीछे हमारी ही बिल्डिंग में, लेकिन पीछे की तरफ जो आंटी रहती है, जो मेरी नेबर है, उनको मैं आंटी कह के बुलाती हूँ, और जब भी मैं बालकनी में जाके आंटी करके चीखती हूँ, तो उनको समझ में आ जाता है कि मतलब मतलब मैं उन्हें पुकार रही हूँ, तो मैंने आंटी आंटी करके चीखा। फिर वो दौड़ के आए, जब तक वो दौड़ के आती, ये वाला फिगर गायब हो चुका था। मेरी आंटी ने मुझे बोला कि क्या है? फिर मैंने उनको तुरंत घर में बुलाया, मैंने बोला कि देखो आंटी, मैं ना बालकनी में खड़ी थी और अचानक से ऐसा वाला एक हुआ, मुझे कुछ दिखाई दिया। वो बोली कि पता है, इस घर में मेरे मतलब बालकनी के उस तरफ, बाएँ तरफ, बालकनी के बाएँ तरफ जो घर था पहले, वहाँ पर एक लड़का रहता था और
उसका जो चाचा है वो भी उसके साथ रहता था। उसका जो चाचा है वो भी उसके साथ रहता था और एक दिन वो चाचा मर गया था क्योंकि ये चाचा ड्रग अब्यूज़ करता था। मतलब ये बहुत ज़्यादा सब्सटेंस अब्यूज़ में पड़ गया था। तो अभी क्या है कि ये वाला जो चाचा है वो जब मर चुका था तो इस लड़के ने 2 दिन तक चाचा का जो डेड बॉडी है उसको अपने कमरे में ही रख दिया था क्योंकि वो लड़का कुछ काम नहीं कर रहा था। उसके ऊपर उसके ऊपर ना थोड़ा-सा पूरे मोहल्ले वालों का शक था। कुछ भी उल्टा-सीधा होता तो एक्चुअली आप भी अगर उस लड़के को कभी देखो ना, आपको भी होगा कि लाइक कुछ भी हो लाइक बिन बुलाए मौसम मतलब कोई भी बारिश हो जाए, बिना मतलब का कुछ हो, तो हर कोई उसी को डाउट कर क्योंकि उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी थी लाइक रात के 2-3 बजे अगर आप उठकर कभी सड़क पे जाओ तो आपको ये दिखने को मिलता, ये लड़का। तो तो मुझे उस आंटी ने बोला कि 2 से 3 दिन बाद किसी ने नोटिस किया कि इस लड़के मतलब उसके खिड़की से दिखाई देता था कि लड़के के पास कोई हमेशा सोया हुआ है और उसके चाचा के बारे में चाचे उसके चाचा को कोई दिख भी नहीं पाता। फिर मतलब लोगों ने उसके घर में जाकर ज़बरदस्ती उसके घर में घुसकर जब देखा तो सबको दिखाई दिया कि एक्चुअली ये चल रहा था। फिर तो आप जानते ही हैं कि वो उनका जो लास्ट रिचुअल्स होता है वो हुआ। दैट्स इट। उसके बाद से कुछ ना कुछ गड़बड़ी उस घर में होता ही था। अभी तो उस घर को गिराकर एक प्रमोटर ने लेकर वो फ्लैट भी बन चुका है उधर। तो यही यही बात है। अभी मतलब उसके बाद से कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। हालाँकि मुझे इस सब बातों में इतना ज़्यादा वो नहीं आता है, इतना ज़्यादा अ, ट्रस्ट नहीं होता है कि ये सब कुछ होता भी है, नहीं भी होता है। लेकिन हाँ, ये बात तो है कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस मतलब कुछ मैं नहीं बोल सकती कि मेरा कॉन्फिडेंस 1 नहीं मतलब 1 से 10 तक तो है ही नहीं। कोई और ही दुनिया का काउंटिंग है जहाँ पर मेरी कॉन्फिडेंस चलती है। तो अभी मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्या करना चाहिए? मुझे तो ये ऐसे दिखाई दिया शायद कोई चोर भी हो सकता है। फिर आंटी ने बोला कि नहीं तुम अगर पूरा मोहल्ला पूरा चप्पा-चप्पा घूमो ना तुम्हें कोई दिखने को नहीं मिलेगा। उस इंसिडेंट के बाद से ऐसा होता है। फिर बहुत मतलब उस वाले फ्लैट का जो प्रमोटर था वो आकर कुछ पूजा-वूजा किया। उसके बाद सब कुछ धीरे-धीरे ठीक होने लगा। तो यही है कहानी भूतों की। और भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। जानने के लिए जारी रहिए।